Hi friends, welcome to our next class for the Indian Express editorial analysis. आज का जो आर्टिकल हम एनालाइज करेंगे वो आया था कल संडे को 12 जनवरी के पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आर्टिकल पढ़ लेते हैं। काफ़ी लंबा सा आर्टिकल है उस बार का। देयर इज़ अ क्राइसिस ऑफ इमेजिनेशन and no amount of perks, ESOPs or staggering six-figure salaries seem to square up to it. The future of productivity, if industry bros are to be believed, lies not in work-life balance but in work-work sublimation. After Narayan Murthy's prescription of a 70-hour work week in 2023, Larsen and Toubro L&T chairman S. N. Subramaniam has urged employees to put in 90 hours at work every week and to even forego weekends in the pursuit of professional excellence. In between, corporate leaders of all stripes, from Bhavesh Agarwal of Ola to Bombay Shaving Company CEO Shantanu Deshpande, have advocated harsher work regimes for a variety of reasons, ranging from character building to nation building. After all, as Subramanian said in the annual company meeting, how long can you stare at your wife? How long can the wife stare at the husband? He could well be saying, who wouldn't want to sacrifice their health, relationships, and interests in exchange for more targets? To a workforce struggling with high stress, low income, fewer opportunities, and inadequate support systems, the hard bottom line and cold condescension could not be clearer. Turnover above all. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? Of course, this hasn't exactly been a secret from employees at the receiving end of HR's exhortations to color-coded festival celebrations, attendance regularization, impractical targets, and support for little else. As it is, employees in Asian countries work an average of nearly 49 hours a week in contrast to 37.9 hours per week in North America and about 37 odd hours in Europe. But when it comes from those at the top of the pyramid, such statements show a shocking lack of consideration for the human cost of such benchmarks. The suggestion that more hours translate to greater productivity and success has no basis in facts. It overlooks employee well-being, both physical and mental, familiar demands, and long-term sustainability. A 24/7 work culture presupposes the luxury of a structure of support and care in homes out of the realm of possibility for a majority on account of income or availability. In a country where even the Prime Minister valorizes working for 22 hours, bucking the trend is hard work. It requires an intuitive acumen to align individual needs with corporate demands and the ability to internalize what the International Labour Organization highlights in its preamble. Labor is not a commodity. That's a bottom line most CEOs fail to read. ठीक है, कुछ अपने नोट्स या फिर रूल्स जो हमने इस पेज पे देखे, इस पेज पे काफ़ी इंटरेस्टिंग से है। एक है वर्ड HR's exhortations, ठीक है। फिर आता है इन कॉन्ट्रास्ट टू, ठीक है। ये एक फ्रेज अपने को मिलता है इन कॉन्ट्रास्ट टू, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम दी, एक आता है टॉप ऑफ द पिरामिड। एक फ्रेज आता है टॉप ऑफ द पिरामिड, ठीक है। काफ़ी सारे हैं, लैक ऑफ कंसिडरेशन, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ सच बेंचमार्क्स, it overlooks employee well-being, both physical, mental. 20 was a presupposed luxury for structure of support and care in homes out of the realm
ऑफ पॉसिबिलिटी, ये भी एक अपना फ्रेज है। आउट ऑफ द realm of possibility, ठीक है। इन अ कंट्री वेर एक और वर्ड आ रहा है वैलोराइजेस, फिर एक और फ्रेज आ रहा है बकिंग द ट्रेंड। ठीक है, एक और वर्ड आ रहा है एक्यूमेन, ठीक है। चलिए, तो ये 4 हमारे इम्पोर्टेंट फ्रेज आए हैं इस वाले आर्टिकल में। एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ। इन कॉन्ट्रास्ट टू मतलब एक तरीके से ऑपोजिट ऑफ, ठीक है, उल्टा अगर मैं बोलूँ तो जैसे ये बोल रहे हैं एम्प्लॉयज़ इन एशियन कंट्रीज वर्क एन एवरेज ऑफ 49 आवर्स, ठीक है। एशिया में जो लोग हैं ऑन एवरेज वो 49 आवर्स काम करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू, इन ऑपोजिट ऑफ, या फिर अगेंस्ट, या फिर किसी के बदले, जो 37 आवर्स काम करते हैं इन नॉर्थ अमेरिका और 37 आवर्स काम करते हैं यूरोप में। इन कॉन्ट्रास्ट टू मतलब उसके ऑपोजिट या उसके अगेंस्ट में, किसी चीज़ के अगेंस्ट में। जैसे हिंदी में बोल सकते हैं कि अगर इसी सेंटेंस को हिंदी में हम बोलेंगे तो हम इसको इन कॉन्ट्रास्ट टू के लिए बोलेंगे कि इंडिया में एवरेज लोग 49 घंटे काम करते हैं, जबकि दूसरे देशों में नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में लोग 37 आवर्स या 37.9 या 37 आवर्स काम करते हैं। तो जब आप किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं या किसी से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जिन चीज़ों में, वहाँ पे हम इन कॉन्ट्रास्ट टू का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है टॉप ऑफ द पिरामिड। अब पिरामिड की शेप होती है ऐसी, ठीक है। अब पिरामिड की शेप को हम यूज़ कर सकते हैं कंपनी के लोगों को देखने में, कि जैसे कंपनी में क्या होता है, जो सबसे जूनियर लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। फिर जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो उतने ही कम लोग होने लगते हैं सीनियर में, और जो बिल्कुल टॉप पे होते हैं जैसे सीईओ होता है या कोई और डायरेक्टर होते हैं, वो एक होते हैं या 2-3 डायरेक्टर्स होते हैं बस। तो सबसे ऊपर जो कम लोग होते हैं उनको बोलते हैं टॉप ऑफ द पिरामिड वाले लोग, जो बिल्कुल लीडरशिप वाले लोग होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट में देखें तो गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे लोग होंगे, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे कुछ लोग होते हैं, फिर सेंटर लेवल पे होते हैं, और उसके बाद बिल्कुल ही जो पीएम ऑफिस में काम करते हैं वो सबसे कम लोग होते हैं, लेकिन वो सबसे टॉप के लोग होते हैं, ठीक है। द टॉप ऑफ द पिरामिड का मतलब जो बिल्कुल लीडरशिप पोजीशन में लोग होते हैं वो, ठीक है। आउट ऑफ द रेल्म मतलब ऑफ पॉसिबिलिटी, आउट ऑफ द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। इस आउट ऑफ द रेल्म मतलब कि जो अगली इस पॉसिबिलिटी है ही नहीं इस चीज़ की, कि मतलब उस चीज़ के उम्मीद सोच से ही बाहर है कि ऐसा पॉसिबल है कि ज़्यादातर लोग कुछ कर पाए। तो आउट ऑफ द रेल्म मतलब उस चीज़ के सोच से ही बाहर है या उस चीज़ के दायरे से बाहर है वो चीज़, अब कि पॉसिबिलिटी के दायरे से बाहर है कोई सी चीज़। बकिंग द ट्रेंड, बकिंग द ट्रेंड मतलब ट्रेंड होता है कि कोई चीज़ जो आजकल बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा हर लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना। और बकिंग द ट्रेंड मतलब कि आप उस ट्रेंड से अलग चल रहे हैं, आप उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये किस ट्रेंड की जनरली बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि इन अ कंट्री वेयर द प्राइम मिनिस्टर वैलराइजेज वर्किंग फॉर 22 आवर्स, की जहाँ जिस देश के प्राइम मिनिस्टर भी 22 आवर्स काम करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो ट्रेंड बन जाता है एक, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात बोल दी तो बहुत सारे लोग वो फॉलो करने लगते हैं। तो अब उस चीज़ को अगर ट्रेंड मान ले हम, कि बहुत 22 घंटे काम करना दिन में एक ट्रेंड बन रहा है, लोग बहुत काम करने लग रहे हैं, बट आपको इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। मतलब आप बोलेंगे कि नहीं मैं 8-10 घंटे काम करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो यू आर बकिंग द ट्रेंड, मतलब आप उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ये
जो आर्टिकल था इसका टोन क्या है, क्रिटिकल है और एनालिटिकल है। क्रिटिकल टोन क्यों है? क्रिटिकल मतलब किसी चीज़ के लिए नेगेटिव हो जाना, ठीक है। क्रिटिकल मतलब किसी चीज़ के लिए नेगेटिव हो जाना या फिर किसी चीज़ के अगेंस्ट में बोलना, किसी व्यू के, किसी पर्सनल के व्यू के, किसी थॉट के या किसी आइडिया के अगेंस्ट हो जाना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। डू नॉट एक्सेप्ट इट, हिंदी में बोले एक्सेप्ट नहीं करने को, ठीक है। तो वो क्रिटिकल किस चीज़ के क्रिटिकल है कि जो एलएनटी के चेयरमैन या जो एलएनटी के सीईओ हैं उन्होंने जो बोला ना कि 90 आवर्स आप 1 घंटे में काम कीजिए, तो ये आर्टिकल क्रिटिकल है इस वाले टॉपिक के। ये बोलते हैं कि इतना काम करना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए। और एनालिटिकल है क्यों? ये एनालाइज करता है, पहले तो बोलते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, फिर उसको एनालाइज करता है विद रीजंस कि क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल क्रिटिकल है और एनालिटिकल है। अब समरी क्या है इस आर्टिकल की? दिस आर्टिकल क्रिटिक्स द ग्रोइंग एडवोकेसी फॉर एक्सट्रीम वर्क आवर्स बाय कॉरपोरेट लीडर्स, हाईलाइटिंग इट्स डिसरिगार्ड फॉर एम्प्लॉय वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मेनली ये आर्टिकल समरी में यही बोल रहा है कि जो एक्सट्रीम वर्क आवर्स की बात है, मतलब 90 घंटे बात करने की या दिन बहुत रोज़ रोज़ घंटों घंटों का मेहनत करने की, उसको क्रिटिक कर रहा है। और हाईलाइट क्या कर रहा है? हाईलाइट कर रहा है डिसरिगार्ड फॉर एम्प्लॉय वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब एम्प्लॉयज़ की वेलबींग और प्रोडक्टिविटी के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है जो कॉरपोरेट लीडर्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब सजेस्ट क्या कर रहा है वो आर्टिकल? आर्टिकल सजेस्ट टू फोकस, ठीक है। एक ये इन्फिनिटिव फॉर्म का वर्ब आ गया, सजेस्ट टू फोकस on employee well-being and sustainable productivity instead of excessive work hours। आर्टिकल सजेस्ट क्या कर रहा है कि आप एम्प्लॉय के वेलबींग प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें, ना कि बहुत बहुत देर काम करवाने के, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आए थे। हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें एग्जॉर्टेशन, वैलोराइजेज, कॉनोटेशन और एक्यूमेन, ठीक है। एग्जॉर्टेशन मतलब अर्जेंट एडवाइस करना, एनकरेज करना, परस्यूएड करना। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं मेहनत करो पढ़ो, मतलब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे आप लोग, और मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, गिव अप मत करिए, अगर मैं आपको ऐसे बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ ना, तो उसको कहते हैं एग्जॉर्ट करना। मतलब आई एम ट्राइंग टू परस्यूएड यू। परस्यूएड करने का मतलब आपको मैं किसी चीज़ के लिए मनाना चाहता हूँ या आपको किसी चीज़ के लिए समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो होता है एग्जॉर्टेशन। ये क्या है? नाउन। इसका वर्ब फॉर्म भी होता है, उसको हम देख लेंगे कभी और। सिनोनिम्स क्या है? परस्यूएड करना, एनकरेज करना, अर्ज करना, प्रॉम्प्ट करना या एडमोनिश करना। एडमोनिश एक नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। अब इसके ऑपोजिट्स क्या होंगे? डिस्करेज करना, डिसअवॉइड करना, डिटर करना, निगलेक्ट करना या इनडिफरेंस, ठीक है। वैलोराइजेज एक वर्ड आता है, रिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। मतलब कोई ऐसी बात जैसे जो बहुत फेमस लोग हैं, जैसे गांधी जी थे या जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो कभी कभी कुछ ऐसे बात बोल देते हैं जिनको सब लोग बहुत एक वैल्यू देने लगते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस दे देते हैं, है ना। जो कोई लीडर अभी कोई कुछ बात बोल देता है उसको हम लोग बहुत वैल्यू और बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो ये है एक वर्ब। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ग्लोरीफाई, एग्जॉल्ट, एलिवेट, सेलिब्रेट या ऑनर। और इसके एंटोनिम्स क्या है? डिमीन करना, डिस्पैरेज, बिलिटिल करना, डिसरिगार्ड करना या क्रिटिसाइज कर देना, ठीक है। कॉनोटेशन का मतलब एन आइडिया और फीलिंग दैट अ वर्ड इन्वोक्स इन एडिशन टू इट्स लिटरल मीनिंग, ठीक है। अब कॉनोटेशन मतलब कि एक वर्ड का एक एक्चुअल मतलब होता है और एक उससे एक थोड़ा सा एक आइडिया और
फीलिंग्स भी जनरेट हो जाती हैं। अब ये क्या है, एक नाउन है। इसके सिमिलर वर्ड्स हैं इम्प्लीकेशन, न्यूआंस, एसोसिएट, अंडरटोन, सजेशन। ऑपोजिट्स कॉनोटेशन के होते हैं डिनोटेशन, एक्सप्लिसिट, क्लैरिटी, डायरेक्टनेस या लिटरलनेस। ठीक है। एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस। ठीक है। अब जैसे पायलट होता है या मान लीजिए कोई बहुत सीनियर पोजीशन पे है, उसको बहुत क्विक डिसीजन लेने होते हैं और गुड जजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। या आप मान लो गाड़ी ही चला रहे हो या फिर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है डिसीजन लेना पड़े। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है नाउन। इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स होते हैं इंसाइट, श्रूडनेस, शार्पनेस, डिसर्नमेंट और परसेप्शन। ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी, डलनेस, ऑब्ट्यूसनेस और इनएप्टीट्यूड। और कुछ वर्ड्स हैं इंट्यूटिव, बेंचमार्क, एडवोकेटेड और सब्लिमेशन। इन वर्ड्स के मीनिंग्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप एक बार देख सकते हैं। किसी में आपको अगर डाउट आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर एक बार मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं क्या क्या थे यहाँ पे। फ्रेजल वर्ब्स में हमारा एक वर्ब आता है स्क्वायर अप और एक आता है बक अप। ठीक है, स्क्वायर अप का मतलब है टू डील विद और सेटल समथिंग, मतलब किसी चीज़ को सेटल करना, किसी प्रॉब्लम को या कोई डिस्प्यूट चल रहा है ना, उनको सेटल कर देना या किसी प्रॉब्लम को सेटल कर देना। इट्स टाइम टू स्क्वायर अप द इश्यूज विद HR, मतलब HR जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको सेटल करने का टाइम आ गया है, HR के साथ डिस्कस करके, बात करके। ही स्क्वायर्ड अप विद द लैंडलॉर्ड बिफोर मूविंग आउट। ठीक है, अब लैंडलॉर्ड के साथ आप क्या सेटल करते हो ना, आपके जो ड्यूज़ रह जाते हैं, आपको कुछ पेमेंट करनी रह जाती है, उनको आपको कुछ रिफंड देना रह जाता है। ठीक है, जब आप घर छोड़ के बाहर निकल रहे होते हो, दूसरे जगह जाओगे, तो लैंडलॉर्ड के साथ आप यही स्क्वायर्ड अप, मतलब उसने सारे ड्यूज़ सेटल कर दिए थे। ठीक है, एक है लेट्स स्क्वायर अप दी अकाउंट्स। अब अकाउंट्स क्या होते हैं, इनकम, एक्सपेंस, है ना, बड़ी सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। तो जब आप अकाउंट्स को एक बार बैलेंस कर लेते हो, सेटल कर लेते हो, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लेट्स स्क्वायर अप दी अकाउंट्स। सिमिलर फ्रेज क्या हो सकते हैं, रिजॉल्व, सेटल या सॉर्ट आउट। ठीक है, अगला फ्रेज हमारा क्या आता है, बकअप। बकअप मतलब टू चीयर अप और एनकरेज, किसी को मोटिवेट करना, किसी को एनकरेज करना। ठीक है, अब जैसे बकअप, थिंग्स विल गेट बेटर, मतलब ये थोड़ा सा आप मोटिवेट कर रहे हो किसी को कि इतना हार मत मानो, थिंग्स विल गेट बेटर, चीज़ें और बेटर होती जाएंगी। ही टोल्ड हर टू बक अप एंड फेस द चैलेंज। ठीक है, अब ही टोल्ड हर मतलब उसने उसके अपने फ्रेंड को बोला कि तुम भी डरो मत और हिम्मत करो और चैलेंज को फेस करो। तो टू बक अप का मतलब उसने एनकरेज करा अपने फ्रेंड को। द कोच अर्ज्ड द टीम टू बक अप बिफोर द मैच, कोच ने अपनी टीम को एनकरेज करा, मोटिवेट करा, ठीक है, बिफोर द मैच। ठीक है, कि अपना बेस्ट परफॉर्म करो, आप लोगों ने ट्रेनिंग कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अब जाओ अपने मैच में बेस्ट दे के आओ। ठीक है, सिमिलर फ्रेजेस होते हैं चीयर अप, पर्क अप, पुल वन सेल्फ टुगेदर। एक बार इडियम्स देख लेते हैं। तो 2 इडियम्स आए थे इसमें, एक है बॉटम लाइन और एक है आउट ऑफ द रेल्म। ठीक है, बॉटम लाइन मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पॉइंट। अब बॉटम लाइन मतलब कि जैसे एक समरी बोलते हैं ना हम हर चीज़ की, कि कितनी भी बात कर लो लेकिन उसकी एक समरी क्या है, तो उस समरी की जगह आप यूज़ कर सकते हैं द वर्ड बॉटम लाइन। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द बॉटम लाइन इज़ दैट एम्प्लॉयज़ नीड सपोर्ट। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं कि लोग पॉइंट्स रख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नीड्स क्या होती हैं, उन सब चीज़ों के डिस्कशन का अगर हम एक समराइज में बोलें तो बॉटम लाइन इज एम्प्लॉयज़ नीड सपोर्ट, की एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट चाहिए होता है
ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकली उसमें से। सिमिलर इडियम्स, क्रक्स ऑफ द मैटर, एसेंस या फिर कोर आइडिया, ठीक है। आउट ऑफ द रेल्म हमने देखा था बियॉन्ड व्हाट इज पॉसिबल और रियलिस्टिक, कोई ऐसी चीज़ जो होनी पॉसिबल नहीं है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि अनरियल चीज़ की बात हो गई कि आप सजेस्ट कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ जो अनरियलिस्टिक है बिल्कुल ही, जैसे कि मतलब बिना पढ़े ही एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं एकदम, मतलब सही तरीके से, फेयर तरीके से, बट आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी और एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ये बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है ना। देयर एक्सपेक्टेशंस आर आउट ऑफ द रेल्म ऑफ रियलिटी। अब वो लोग क्या है, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक अनरियल चीज़ है, वो पॉसिबल ही नहीं है एक्सपेक्ट होना। इसके सिमिलर इडियम्स हैं बियॉन्ड रीच और अनअटेनेबल, ठीक है। चलिए एक रिमाइंडर, तो हमारी डेली क्लास आती है 2 बजे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल रिव्यू की, और एरर डिटेक्शन की रोज़ क्लास आती है अपनी 6 बजे। तो आपको बहुत सारे इसमें ग्रामर के, इंग्लिश के रूल्स, इवन प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैं वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा हूँ आप उसको ध्यान दीजिए, ये सारा आपको मिल जाएगा सीखने को। ये आपको डेली मिल जाएगा यूट्यूब पे। अगर आप एग्ज़ाम्स की भी सारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपको काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं कि ये रूल क्यों अप्लाई करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, या फिर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको हमारी सारी क्लासेस का कंटेंट जो है पीडीएफ में अगर कंसोलिडेटेड चाहिए, ठीक है, वर्ड्स विद रूल्स, इडियम्स विद मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन की कहाँ पे ग्रामर प्रॉब्लम हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको अगर पीडीएफ में चाहिए वीक टू वीक, और डेली हम लोग एक क्विज़ करते हैं जिसमें 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं डेली भेजता हूँ अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। अगर ये सारी चीज़ें आपको इस साल के लिए प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इंग्लिश बेसिक्स के कोर्स में। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, 500 रुपीज़ है पूरे 1 साल का। तो आप इसमें रजिस्टर करिए और ये सारी चीज़ें ही फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट आपको मिलने लग जाएंगी, ठीक है। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है या कॉल करना है, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी और इस कोर्स में रजिस्टर कर देगी, ठीक है। आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप आंसर कीजिए। इसमें आपको करेक्ट वर्ब का टेंस चूज़ करना है, ठीक है। ये आप देख लीजिए। जो कल के हमारे क्वेश्चंस थे वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। द टीम आर कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि लास्ट वीक मतलब पास्ट की बात हो रही थी, तो पास्ट में हमेशा हम पास्ट टेंस लगेगा और सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आर कंप्लीट, आर क्या है, प्रेजेंट फॉर्म हो गया, तो आर तो नहीं हो सकता, यूज़ हो सकता। सिंपल पास्ट ही यूज़ करेंगे हम। द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक। द टीम वॉज कंप्लीटेड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वॉज यहाँ पे इस एक्टिविटी के लिए करेक्ट वर्ब नहीं बन सकता है, और वॉज वैसे भी मीनिंग ही बदल देगा उस पूरी चीज़ का, तो वॉज यहाँ नहीं आ सकता। द टीम हैव कंप्लीटेड भी गलत है, बिकॉज एक सिंगल एक्टिविटी और कंप्लीट करने की बात हो रही है, मतलब कोई लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है, इसलिए हैव कंप्लीटेड भी नहीं आ सकता है। शी गो टू द मार्केट एवरी डे, अब हमने देखा था कि कोई हैबिट की बात है, अगर हैबिट की बात है तो हमें प्रेजेंट टेंस के ही यूज़ करना है। शी इज़ गोइंग नहीं हो सकता है, शी गॉन नहीं हो सकता है, हमें प्रेजेंट को यूज़ करना है क्योंकि ये एक हैबिट है, ठीक है। ये हैबिट वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये हर संडे कोई एक एक्टिविटी कर रही है तो इट बिकम्स अ हैबिट, ठीक है। दे वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द आफ्टरनून येस्टरडे, ठीक है। अब येस्टरडे है तो पास्ट टेंस ही जाएगा, दे है तो प्लूरल में जाएगा, बट हमारा वर्ब जो है वॉज बोल रहा है तो वॉज सिंगुलर हो गया, वॉज नहीं आ सकता, वर आएगा। दे वर प्लेइंग, मतलब कंटिन्यूस एक्टिविटी की बात हो रही है कि वो खेलते जा रहे थे, ठीक है। और एक कंप्लीट एक्टिविटी, दे इज़ प्लेइंग भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो एक सिंपल कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस
is enough to use here. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डू नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आप पास्ट में जाएं या फिर आप एक प्रेजेंट में जाएं. ठीक है, अगर आप पास्ट में जाएंगे तो ही डू नॉट नहीं हो सकता, ही डिड नॉट होगा. और अगर आप प्रेजेंट में जाएंगे तो ही डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन. डू नॉट नोइंग तो गलत ही है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एम एग्री विद योर ओपिनियन अबाउट द पॉलिसी. अब एग्री क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है और कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ करना है. ठीक है, अब आई एग्री, आई एम एग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे. आई एग्री डायरेक्टली मीनिंग बना दे रहा है कि आई एग्री, मैं मान रहा हूँ आपका ओपिनियन पॉलिसी के बारे में. ठीक है, तो ये दिस इज़ द राइट आंसर. आई हैज़ एग्री भी गलत है और आई एम एग्रीइंग विद योर ओपिनियन कुछ कॉन्टेक्स्ट में चल सकता है. ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, तो अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है एडिटोरियल की. कल मिलेंगे एक बार. अब से हम इंग्लिश बेसिक्स क्लास भी अपलोड कर देंगे, वो यूट्यूब पे आपको रोज़ सुबह 10 बजे मिल जाएंगी. ठीक है, तो रोज़ सुबह 10 बजे इंग्लिश की बेसिक्स की क्लास होगी, 2 बजे एडिटोरियल होगा और 6 बजे एरर डिटेक्शन का होगा. तो 3 क्लासेस आपकी डे टू डे आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होने लग जाएंगी इस वीक से.